today. This is class 10th board exams paper, CBSE. Okay, and a very important question paper that we have got here. Overall, I analyzed the paper today and it was a wonderful paper, and we can say that paper was moderate. It was not exactly very difficult, but at the same time, I would not say the paper as easy. So we can say that the first passage that was given here, it was based on the topic of organic foods and how we have some conceptions related to organic food. So very important topic, this one. So there was an unseen passage based on that topic. And then the second topic is related to environment. So these two unseen passages were there, and the questions asked were very of different variety. And then we have got the section B, which is grammar and creative writing. So guys, straight away, let's dive into this question set of grammar particularly. So let's try to answer the question. So the teacher motivated the students by letting them know that if they submit their assignments by the end of the day, they might get an opportunity to watch the match. Okay. So guys, here the fill in the blanks is there, and what should we do here? A very important thing is there. So the answer is would. Yes, the correct answer is would. Okay, if they would submit their assignment by the end of the day, so यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशनल है, तो कंडीशनल में इफ के साथ हम देखते हैं कि प्रॉपर वुड का यूज होगा, क्योंकि दूसरा क्लॉज माइट है। ठीक है, मे का माइट कर ही लिया है, तो कंडीशनल में हम विल का वुड कर देंगे, इस टाइप से बन जाएगा। तो वुड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, डैश रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ कोच एंड हिज प्लेयर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द प्लेयर्स रिप्लाई। Coach, will you be able to report for morning practice during the summer break? Player, sir, I will report every morning at 7 a.m. sharp. Okay, so the answer to this question is the coach, while talking to the player, asked him whether he would be able to report for morning practice. The player affirmed that I की जगह क्या हो जाएगा, प्लेयर के लिए आप ही यूज करेंगे, विल का वुड हो जाएगा, that he would report, okay, every morning. Rest part of the sentence will remain the same, that he would report every morning at 7 a.m. sharp. ठीक है, 10th क्लास का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट ऑप्शन, the cars were stopped dash going any further due to a traffic diversion. The cars were stopped from going any further. ओके, जब भी गोइंग लगता है तो उससे पहले फॉर या फ्रॉम जैसे प्रेपोजिशंस लगते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी फ्रॉम। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आया है क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट, sorry for this, just give me a second. Without a safety belt or carries passenger without seat belts will be fined. ठीक है, तो अब इसमें हमें एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैरीज कह रहा है और विल बी फाइंड कह रहा है। विल बी फाइंड फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर क्लॉज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पेयर फ्यूचर से whoever, मतलब जो भी। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एरर सीधा सीधा हमें ड्रोव में लग रहा है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में जो पहला पार्ट है ये प्रेजेंट सिंपल लगता है, ये वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल, और लास्ट वाला पार्ट हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल लग जाता है, विल बी फाइंड। तो यहाँ पर इन्होंने पैसिव में बनाया है, विल के साथ बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सीधा सीधा सा है कि ये, क्योंकि ये वाला क्लॉज पास्ट में है, तो ऑब्वियसली
आप यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट में है, सॉरी, तो ये हमने प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसके पास्ट की वजह से इसको क्यों नहीं कर सकते पास्ट। तो आपको बताया साथियों कि कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल यूज होता है। ये फ्यूचर सिंपल पैसिव है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, ड्राइव, ड्रोव की जगह क्या हो जाएगा, ये ड्राइव्स। हूएवर ड्राइव्स a motor vehicle without a safety belt or carries passenger without seat belts will be fined. क्लियर। तो ड्रोव की जगह हो जाएगा ड्राइव्स। समझ में आ रहा है सबको? यू कैन सी हियर कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं धुंधला सा आ रहा है, नॉट ओनली डिड मयंक वर हार्ड टू विन द ट्रॉफी डैश हेल्प द जूनियर्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो आप देख रहे हैं कि क्या होगा इसमें, नॉट ओनली टेक्स अ पेयर विद बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो में हम लोग यहाँ पर एक ही ऑप्शन लिख रहा है, बट ही ऑल्सो। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? करेक्ट। सो नॉट ओनली टेक्स अ पेयर विद बट ऑल्सो, तो उस बेस पे बन जाएगा। fill in the blanks by using the correct form of the words. So the names of the applicants were dash इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द मैनेजर। ऑब्वियस है कि पैसिव में है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और वैसे भी यहाँ पर सबमिटेड है तो ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि वर्ब पहले ही आ गया है। तो हम यहाँ पर लिस्टेड का यूज करेंगे। ओके, वर लिस्टेड, सो द आंसर वुड बी वर लिस्टेड। ओके, so that's a very easy question in that sense. Okay, let's move on to the next question. Very interesting question guys। क्या होगा, 2/3 हमने क्वेश्चंस करे थे ये वाले। 2/3 of the students dash present at the inaugural function। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में देयर इज ऑलवेज अ डाउट। जल्दी से बता दो क्या होगा। आपको रूल क्या बताया था कि जब भी आपके 2/3 1/3 जैसे क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, ऑब्वियसली यू विल fill the plural helping verb. If the subject is singular uncountable noun, you will use the singular helping verb. This is plural countable noun, so PCN plural countable noun हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर word। 2/3 of the students were present, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें रूल लिख देंगे कि कोई भी फ्रैक्शन होगा, 1/3 2/3 1/2, ठीक है, 1/9, कुछ भी कर लें, तो फ्रैक्शन के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, जैसे अगर ये होता कि 2/3 ऑफ द बुक, यानी एक किताब का 2/3 हिस्सा, तब क्या लगाते हैं यहाँ पर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और वहीं पर इसी फ्रैक्शन के साथ अगर हमारा कोई ऐसा आ गया जो कि जैसे यहाँ पर है PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी, सेम सेंटेंस ले लेते हैं, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द एरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन। तो शॉप के होर्डिंग में एक ये एरर आया है, वर्ल्ड वाइड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, बीसपुर सिवाना। फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द 24 आवर हेल्प डेस्क। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगेन। यस, एरर आपको इसमें करेक्ट करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है, उसको करेक्ट करना है। So the answer is information is error and we should rather use information because information is actually uncountable noun and it cannot be used in terms of plural. So the correct answer is information, and you can use here the rule as singular uncountable noun. It is called as singular uncountable noun. Okay, so there is one error only. Okay, so there is no need to find, 24 hour is correct actually.
24 आवर, देयर इज ऑल्सो अ डैश हियर, 24 घंटे का जो है एक दिन के सेंस में कह रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में और कहीं एरर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगेन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फ्रेंड अजय, डिड यू बाय अ जूम लेंस विद योर कैमरा? ठीक है अजय, नो आई डिड नॉट, आई रैन आउट ऑफ मनी। Ajay's friends asked Ajay whether he had bought a zoom lens with his camera. Ajay replied that he had not because, again यहाँ पर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जब हम पास्ट में इसको ले जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। ठीक है, और तो फिर या पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा कहेंगे हम। तो ही हैड रन आउट ऑफ मनी। रन आउट ऑफ का क्या हो जाएगा? ही हैड रन आउट ऑफ मनी। पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर होता ही इज रनिंग आउट ऑफ मनी, तब यहाँ पर होता ही वॉज रनिंग आउट ऑफ, इसका वॉज होता। ठीक है, रैन का सीधा हैड रन हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिज ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डैश लीविंग फॉर द स्टेडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन टॉपिक का नाम भी बताते जा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है ये क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सारे साथी मेरे साथ। तो गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग देखेंगे अलोंग विद का यूज किया गया है। तो अलोंग विद का रूल क्या है कि अलोंग विद में हमेशा दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट 1 और एक सब्जेक्ट 2। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल सब्जेक्ट 2 S2 एंड दिस इज व्हाट यू कॉल S1। ठीक है, तो जो हमारा नियम लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? जो हेल्पिंग वर्ब लगता है दैट इज अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू S1। ठीक है, S1 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इज हिज ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड से हमें मतलब नहीं है, हम हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग इज लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लीविंग आया है तो इसलिए हैज आएगा नहीं, या तो हैज बीन होता, तो इसीलिए इज लीविंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगेन ये इमेज मैं माफी चाहूंगा, धुंधली आ रही है थोड़ा सा। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्वेश्चन को। द रेसिडेंट्स प्रॉमिस टू डैश द प्रेसिडेंट of the association in his demand for proper garbage disposal system. So the guys, the sentence is the residents promised to dash the president of the association in his demand for proper garbage disposable system. अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस है stood by, stand by, stand against, stood for। देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर है कि प्रोमिस्ड आया है, तो प्रोमिस्ड आया है तो स्टैंड बाय नहीं होगा और स्टैंड अगेंस्ट भी नहीं होगा। प्रॉमिस कर रहे हैं वो, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे गाइस, स्टूड बाय और एक बचा स्टूड फॉर। देखिए स्टूड फॉर का मतलब किसी चीज के लिए खड़ा होना, और ध्यान से सुनेंगे, और स्टूड बाय का मतलब किसी चीज के साथ खड़ा होना। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर निवासी हैं वो किसी, यानी कि वो जो अपने प्रेसिडेंट हैं उनके साथ खड़े हैं, साथ के संदर्भ में हम इसका ज्यादा यूज देख पा रहे हैं। तो इसीलिए गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूड बाय, द रेसिडेंट्स प्रॉमिस टू स्टूड बाय द प्रेसिडेंट। स्टूड फॉर नहीं, उनके लिए नहीं, उनके साथ। क्लियर तो हो रहा है सब लोगों को? तो इसीलिए क्या होगा बेटा? स्टूड बाय, और यहाँ पर क्योंकि प्रॉमिस्ड है इसलिए स्टैंड का स्टूड करना पड़ेगा। ठीक है, the number of people attending this evening's annual function is dash than that of the previous years. ठीक है, so the number of people attending this evening's annual function। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, हम इसको कहेंगे सर ये एडजेक्टिव्स के क्वेश्चन से लिया हुआ है। एडजेक्टिव्स भी हम लोग जानते हैं साथियों, न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी होते हैं, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने काउंटेबल नाउन के साथ भी आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल काउंटेबल नाउन है, क्या है? काउंटेबल नाउन।
तो काउंटेबल नाउन प्लूरल भी है, ऑब्वियसली एक से अधिक लोग हैं, तो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पहली बात तो फ्यू और लेस में डिफरेंस मच तो आएगा नहीं। फ्यू और लेस में डिफरेंस ही यही है कि जो लेस होता है वो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ देन भी है ऑप्शन में, तो इसीलिए हमें फ्यू का सेकंड डिग्री लगाना पड़ेगा, फ्यूअर। सो फ्यूअर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स एपोस्ट्रॉफी से प्रीवियस ईयर्स नंबर ऑफ पीपल कहना चाह रहा है वो, तो इसीलिए आंसर हो गया फ्यूअर। किसी को कोई डाउट? फ्यूअर क्यों आया? पहला रीजन काउंटेबल नाउन, और दूसरा रीजन क्योंकि यहाँ पर देन है तो इसलिए आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस पेपर में आपने देखा कि बहुत अच्छे सा ये लेटर राइटिंग भी आया था। तो इसमें letter to the editor of Hindustan Times stressing upon the need of sensitizing children to the plight and loneliness of the elders and to inculcate in them values of caring and sharing. Okay, express your views on strengthening of family values. और फिर यहाँ पर दूसरा आया था congratulating on his work ethic and professional approach. Also include a mention of his commitment, sense of responsibility, good interpersonal skill and his spirit of टीम वर्क। तो एक तरीके से प्रेज, लेटर ऑफ प्रेज है और एक लेटर ऑफ यू कैन से इन अ वे एम्पैथेटिक लेटर लिखने के लिए पूछा है। फिर ये वाले क्वेश्चंस 10th के एग्जाम्स में बहुत डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरीके से आपका हम कह सकते हैं कि जो फैक्चुअल डेटा है उसको आपको लिखना पड़ता है। तो फैक्चुअल डेटा का आपका जो डेटा है उसको आपने अपनी लैंग्वेज में उस पर एक पैसेज बनाना पड़ता है। फैक्चुअल डेटा का इंटरप्रिटेशन के अलावा उस पर आपको एक लैंग्वेज देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही नया टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें आपको डेटा को रीड करना है। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल कितने लोग कर रहे हैं, फिजिकल अब्यूज कितना, तो आप देख रहे हैं 34% ऑफ द पीपल दे शो इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है। एंड देन फिजिकल अब्यूज कितने हो रहे हैं, 14% हो रहे हैं। और मेजर जो है 52% जो शेयर है, तो आप इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट या नो लॉन्गर यूजफुल के सेंस में आप इसका यूज देखते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन डेटा इट इज क्वाइट क्लियर दैट more than 50% of the people's attitude towards animals is highly, you can say, selfish. They have they believe it seems to show that for them animals are no longer useful and they continue to have their own selfish purposes towards animals, ठीक है। Then you will say that almost 1/3, ऐसे लिखना पड़ता है इसमें, आपको 34% कोट नहीं करना है, आपको डेटा को रीड करके उसको लैंग्वेज देनी है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको 1/3 कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पीपल हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनिमल्स, इस तरीके से। फिर फ्रॉम द डेटा इट इज क्वाइट क्लियर दैट it is quite clear that 1/6 you can say, okay, 15 is 1/6 or maybe 7th of the people like have shown physical abuse towards the animals as well। इस तरीके से आपको डेटा को रीड करना था, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला डेटा देखेंगे, थोड़ा सा सिंपलर था। अर्बन और रूरल एरिया में जो चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th स्पेशली ऑप्टिंग फॉर ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स। तो आप देखेंगे अभी भी साइंस जो है थोड़ा सा टॉपल आउट कर रहा है अर्बन एरिया में, बट रूरल एरिया में आप देखें तो रूरल एरिया में ह्यूमैनिटीज जो है रूल कर रहा है, और इवन कॉमर्स सेकंड नंबर पे आ रहा है, और वहां पर रूरल एरिया में साइंस को बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं अर्बन और रूरल में क्लियर कट डिवीजन आप देख पा रहे हैं चॉइस ऑफ ऑप्शंस में। तो ये आपको डेटा को रीड करके देना था, ठीक है। फिर उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर अनसीन पैसेज आया था गाइस, लिटरेचर का क्वेश्चन है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक यहाँ पर आपको जो है एक्सट्रैक्ट से लेना था, रूटीन, हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको वहां पर सिमिलर लुकिंग वर्ड था, तो ट्रेट इसका आंसर था, ट्रेट, ठीक है। ट्रेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ही होता है। और फिर यह जो है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, एक बार ट्राई करें सारे बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग
means the opposite of the phrase under control. अंडर कंट्रोल फ्रेज का ऑपोजिट कौन सा होना चाहिए इसमें, जल्दी से बताएं सारे बच्चे. फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज, करेक्ट. देखिए अंडर कंट्रोल मीन्स इजी टू मैनेज, ओके. And if it is easy to manage, then we have to find the opposite of that, that is difficult to manage. Okay, so it was a little bit tricky question, so the answer is C. Wild beat से related जो poem थी, this poem was importantly asked. Now in this question is a very important question for our literature students, that it is clear that alliteration is the poetic device used for roaming around because dash. Now explain how alliteration applies here. So basically we have to write the definition of alliteration here. So again the answer is alliteration is repetition of consonant sounds. Very important question for LT students, especially in Uttarakhand. They have asked 3 questions from alliteration this time in LT, and also good time to congratulate our LT students who have qualified, who have got the document verification process done and all the things are done. Finally, they are allotted the seats. So we have got many students. I think one of the students is here with us, Meena Chaudhary ma'am. There are many students who have got qualified from KJ in LT English especially. So a good time for us to again remember their hard work and congratulate them for their journey ahead. All right. So on behalf of the whole KJ team, I personally congratulate all the selected candidates and may they become the good example of a good teacher. Okay. So we have got so this passage is given. Just notice, if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So what does the line have the effect on the reader? So the effect is that of a terror, because he's talking about eating. Okay, so it's an effect of terror. Okay, and this is there. Which word in the extract tells you that you have recognized the noble beast? So that is discern. Discern means to identify. Okay, so then we have got another some questions here, and it is clear that repetition is the poetic device used for his brilliant eyes at the brilliant stars because dash. Explain how repetition applies here. So repetition is when we repeat. Repetition means repetition of words. Okay, repetition of words. For ऐसे लिखना था पूरा आंसर. For emphasis or stress that the writer is trying to produce. So that is there. Called as reading between the lines. Okay, so reading between the lines is very important. This is a kind of formula for decoding the unseen passages, which are being asked in huge numbers in all English exams right now. And we know reading between the lines means understanding the essence, the indirect meaning of the paragraph. Okay, not exactly going word by word, but understanding the hidden, the underlying meaning of the word. So reading between the lines was important in such passages. So overall, all the best to the bodies for their further exams, and Team KJ wishes them all the best so that they come up with flying colors. One more small announcement here, that we are going to start our English Olympiad series soon, where personally I'm going to take some students who are deserving enough for different classes Olympiad exams. So those who are trying to have us go at Olympiad, particularly the English Olympiad, I will be there to help you out. I will be there to provide my services. So please do let me know, especially after class 6 and till 12th Olympiad English learners, if there are any, please do let us know on the numbers that we show on our YouTube channel. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सब जॉनर्स ऑफ द नॉवल आ गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है.